ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرال، میری جان کہاں ہو تم؟ اپنے نام کی پکار سن کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اس وقت کچن میں چھپی ہوئی تھی۔ موہت تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے واپس آیا تھا۔ وہ اس وقت بہت ہی میٹھی آواز میں اسے پکار رہا تھا، مگر وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس میٹھی آواز کے پیچھے کتنی نفرت چھپی ہوئی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور بازو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، یوں جیسے خود کو چھپانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہو۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی۔ موہت اسے لاؤنج میں تلاش کر چکا تھا۔ اب اس کا رخ کمرے کی جانب تھا، جب اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کچن میں کچھ گرا ہو۔ وہ چونکا تھا۔ موہت کا بلّا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور وہ اس کے بالوں میں پیار کرتے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے زیادہ شرارتیں نہ کیا کرو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بوسہ دے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر آنچل پر پڑی، جو کسی اور کا نہیں بلکہ میرال کا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ لوکا سے مخاطب ہوئے کہنے لگا، مجھے میری بیوی کہیں نظر نہیں آ رہی، تم جانتے ہو وہ کہاں پر چھپی ہے؟ مالک کی بات سن کر وہ میاؤں میاؤں کرنے لگا۔ موہت نے اسے زمین پر چھوڑا۔ اسے لگ رہا تھا وہ بھاگتا ہوا میرال کی طرف جائے گا، مگر وہ باہر نکل گیا۔ بہت ہی نافرمان بلّا ہے، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسی میز کی قریب چلا گیا جس کے نیچے وہ چھپی ہوئی تھی۔ میرال میری جان، اگر تم میرے 3 گننے سے پہلے خود باہر نکل آؤ گی تو میں تمہاری سزا میں تھوڑی سی کمی کر دوں گا، لیکن اگر میں نے تمہیں خود تلاش کر لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم مجھے اچھے طریقے سے واقف ہو، تم جانتی ہو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ اپنی سسکیاں روکنے کے لیے اس نے اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ شاید قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرال کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے میز کے نیچے سے نکالا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس میں وہ بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے میرال کے وجود کو ایک جھٹکا دیا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت خاموش ہو جاؤ، ورنہ تمہاری آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ یہ سن کر اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ موہت بھی کھل کر مسکرا دیا۔ تم میری فرما برداری کرتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، بس اسی طرح سے فرما بردار بن کر رہا کرو۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، تم صرف اور صرف اپنا خون جلا رہی ہو، کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہارے جلاد شوہر پر تمہارے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں پڑتا، خاص طور پر اس وقت جب غلطی بھی تمہاری اپنی ہو۔ تم جانتی ہو کہ میں غلطیوں کو نہ تو معاف کر سکتا ہوں اور نہ ہی درگزر کر سکتا ہوں۔ مجھے صرف اور صرف سزا دینی آتی ہے اور اس کام میں بہت ماہر ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں دوبارہ یہاں سے بھاگنے کی غلطی نہیں کروں گی۔ اس نے پھر سے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ شاید اس ظالم انسان کے دل میں ترس آ جائے، مگر لگتا تھا اس کا دل پتھر کا بنا ہو۔ پچھلی بار میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، جس کا صلہ میں اس صورت میں دیکھ چکا ہوں۔ تم نے پھر سے یہاں سے بھاگنے کی جرات کی ہے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا، جبکہ وہ چیختی چلاتی رہی۔ یہاں پر کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا، کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور جس انسان کو وہ سب سے زیادہ مخلص سمجھتی تھی، وہی انسان آج اس کے لیے جلاد بنا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، مجھے آپ سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی جان لے لوں۔ یہ سن کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر گرایا اور خود بھی گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی گردن اس کے سامنے کی اور اس کے ہاتھ اپنی گردن پر رکھتے ہوئے کہنے لگا،
لو تمہارے پاس کھلا موقع ہے, لے لو میری جان. بلکہ رکو, میں تمہیں پسٹل لا کر دیتا ہوں, ایک ہی گولی مارو اور میرا کام تمام کر دو. اس نے صرف کہا نہیں تھا بلکہ ایسا کر کے بھی دکھایا تھا. اس کی بات سن کر وہ مزید اونچی آواز میں رونے لگی. اگر مجھے اپنے رب سے خوف محسوس نہ ہوتا تو میں خدا کی قسم آپ کو جان سے مار دیتی. مجھے بس اپنے ہاتھ آپ کے گندے خون سے رنگنے نہیں ہیں. ابھی اس نے یہ بات مکمل نہیں کی تھی کہ موہت کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا. تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. جب تک تمہیں تکلیف نہ دی جائے تب تک تم اپنی اوقات میں واپس نہیں آتی. کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ آخر میں نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح سے سکنے لگی تھی. تمہارا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ تم میرے دشمن کی بیٹی ہو. تمہارے باپ نے میرا بہت نقصان کیا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اس نے تو میرے باپ کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی تھی. مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب تمہیں تکلیف پہنچا کر میں اس سے اپنا حساب برابر کروں گا. تم بہت پچھتاؤ گے موہد. تمہیں اپنے کیے پر افسوس ہوگا اور تب تم مجھ سے معافی مانگنے کے لیے بھی آؤ گے. لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. تم رو گے, تڑپو گے, میرے قدموں میں گرو گے, لیکن میں تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی. اس وقت میں بھی اپنے دل کو پتھر کا بنا لوں گی, بالکل ایسے ہی جیسے تم نے ابھی میرے لیے دل پتھر کا بنایا ہوا ہے. تم یہ بات بھول رہی ہو کہ میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. میں تو ہنستا کھیلتا ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا. لیکن تمہارے باپ کی حرکتوں نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا. تم جانتی ہو کہ مجھے ظلم سے کتنی نفرت تھی اور میں ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا. لیکن تمہارے باپ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ میں آج خود ظالم بن گیا ہوں. کیونکہ مجھے ایک چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے اس کا جواب ظلم کی صورت میں ہی دیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ بعض لوگوں کو معافی راست نہیں آتی. میں نے سنا تھا کہ تمہیں اندھیرے سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے. یہ کہہ کر اس نے ایک نظر اپنی زوجہ محترمہ پر ڈالی تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی. نہیں موہد, پلیز نہیں, میرے ساتھ ایسا مت کرنا ورنہ میں مر جاؤں گی. وہ اس کے قدموں میں گر گئی اور گڑ گڑانے لگی. مگر اس کے رونے کا اب اس انسان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. اس نے دوبارہ سے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر گھسیٹنے لگا. وہ چھوٹے بچوں کی طرح بار بار زمین پر گر جاتی تھی. یہ بات موہت کو بھی بہت اچھے طریقے سے معلوم تھی کہ وہ اندھیرے سے بہت خوفزدہ ہوتی ہے. اسے عید کا دن اچھی طرح سے یاد تھا جب سب لڑکیاں اوپر کمرے میں بیٹھی مہندی لگا رہی تھیں. جب ان میں سے ایک لڑکی نے میرال سے کہا, جاؤ نچلے پورشن سے کشن اٹھا کر لے آؤ. چاند رات تھی, سب کزنز اکٹھے ہوئے تھے. فاریہ کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا گئی اور منہ بناتے ہوئے کہنے لگی, نیچے تو اندھیرا ہے اور تم جانتی ہو کہ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے. موہت جو کہ اسے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا, میرال کی بات سن کر اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی. تب اسے یہ لڑکی بہت پسند تھی. وہ اس کی سب کزنوں میں معصوم اور منفرد تھی. نہ ہی اسے زمانے کی چالاکیاں آتی تھیں اور نہ ہی وہ فضول کے لڑکوں کے ساتھ بات چیت کرتی تھی. جبکہ اس کے مقابلے میں باقی سب لڑکیاں عجیب سی فطرت کی مالک تھیں. اپنے حسن کا دیدار کروانا, لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا, عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں اور عجیب و غریب قسم کے مشغلے, اسے باقی سب سے کوفت محسوس ہوتی تھی. لیکن میرال سے بات کرتے ہوئے اسے ایک انجانی سی خوشی ملتی تھی, کیونکہ وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی اور اسے اس طرح کی لڑکیاں اٹریکٹ کرتی تھیں. فرحان جو کہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھا ہوا تھا, اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا, کیوں نہ آج اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ کوئی شرارت کریں؟ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ موہت نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, میں کہہ رہا ہوں کیوں نہ آج اس کے ساتھ ایک پرینک کریں.
बहुत ही उछलती फिरती है, कल भी मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। देखता हूं कि आज कैसे लाइन पर नहीं आती। फरहान अजीब से लहजे में बात करने लगा। उसकी बात सुनकर मोहित ने उसे घूरा और फिर डांटते हुए कहा, खबरदार जो तुमने इस लड़की को डराया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें बड़ी उसकी परवाह हो रही है, खैर तो है? फरहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो हड़बड़ा गया, मगर मुंह से बोला कुछ भी नहीं और दोबारा से कबीर के साथ गप्पे लगाने लगा। सब कजन्स एक ही जगह पर जमा थे। लड़कों ने अपनी एक टोली बनाई हुई थी, जबकि लड़कियां आपस में बैठी बातें कर रही थी। मैं थोड़ी देर में आता हूं। फरहान वहां से उठकर चला गया। इससे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन कबीर बिजनेस के हवाले से बात छेड़कर बैठ गया, जो बहुत ज़रूरी थी। वो तो बिजनेस का नशा रखता था और उसके लिए तो वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। इसलिए उसने बातें सुनना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसे इस वक्त मिराल भी भूल गई थी। याद था तो सिर्फ ये चीज़ कि कबीर उसे बहुत अहम मशवरे दे रहा था। मिराल डरते डरते सीढ़ियां उतर रही थी जब अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाती, फरहान ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख लिया और उसे डांटते हुए कहने लगा, क्या हो गया, डर क्यों रही हो? ये मैं हूं। ओहो फरहान भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वो अपने दिल पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। आप यहां पर क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए तुम्हारे साथ आ गया हूं। जी, आपने बिल्कुल ठीक किया है। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑफ कर दी, क्योंकि फरहान लाइट्स ऑन कर चुका था। अब चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। दरअसल निचला पोर्शन हमेशा खाली रहता था, कभी कभार ही उसे खोला जाता था, खास तौर पर उस वक्त जब कोई शादी का मौका हो या दूर से मेहमान रहने के लिए आ जाए। कुशन किस कमरे में पड़े हुए हैं? फरहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो मासूमियत से कहने लगी कि सबसे बड़े कमरे में मौजूद है। आप क्या जाकर ले आएंगे? अरे मैं क्या कुशन उठाता अच्छा लगूंगा? जाओ जल्दी से लेकर आ जाओ। फरहान के लबों पर उस वक्त बहुत पुरस्रार मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो कमरे में कुशन उठाने के लिए गई तो वो जल्दी से गैलरी की तरफ चला गया और सारे घर की लाइट्स ऑफ कर दी। अंधेरा जैसे ही फैला, खौफ की वजह से उसके हाथों से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया। मोबाइल भी बंद हो गया था। वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो जोर जोर से फरहान का नाम पुकारने लगी, मगर मजाल है जो फरहान ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला हो। उसकी चीखें इसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी। बड़ी आई, खुद को तोप चीज समझने वाली। मैंने मना भी किया था मुझसे पंगा नहीं लेना, मगर मजाल है जो इस लड़की को कोई बात समझ में आती हो। ये कहकर वो वहां से चला गया ताकि थोड़ी देर के बाद होने वाली इज्जत अफजाई से बच जाए, क्योंकि सारे घर की लाइट ऑफ हो गई थी। इसलिए मोहित को अंदाजा था कि ये हरकत किसने की है। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो नीचे आया। सबसे पहले तो उसने सारी लाइट्स ऑन की। मिराल आंखें बंद किए उस वक्त जमीन पर बैठी हुई थी और ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। उसे लग रहा था ये अंधेरा उसे निगल लेगा और अपने अंदर गुम कर लेगा। मोहित भागता हुआ उसके पास गया और उसे कंधों से पकड़कर उठाते हुए कहने लगा, देखो कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं तुम्हारे पास हूं, लाइट्स भी जल रही हैं, आंखें खोलो, देखो हर तरफ रोशनी है। जानी पहचानी आवाज सुनकर उसने बेसाख्ता आंखें खोली तो वाकई चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। वो एक झटके से उसके गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है अंधेरा मुझे अपने अंदर कैद कर लेगा। आप मुझे कभी भी अंधेरे में गुम मत होने दीजिएगा। पता नहीं ये बात उसने क्या सोच कर कही थी, मगर उसकी ये बात सुनकर मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक तो वो उसके बेहद करीब थी, उसके दिल की धड़कनें वाकई मुंतशिर हो गई थी।
इससे पहले कि कोई दूसरा वहां पर आ जाता, उसने झटके से उस छोटी सी लड़की को खुद से अलग किया। उसे भी जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गर्दन झुकाकर माजरत करने लगी। माफ कर दीजिएगा, जज्बाती हो गई थी। नहीं, कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से ऊपर चलो। इससे पहले कि वो दोनों कमरे से बाहर निकलते, वहां पर बाकी कजन्स भी आ गए। कोमल तेजी से भागती मिराल के पास गई। वो उसके इस खौफ से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो उसके हाथ पकड़ते हुए बेचैनी से कहने लगी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र मत करो। ओ शुक्र है लड़की, वरना तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं खुद भी बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर मोहित भाई ना आते तो शायद मेरा दिल बंद हो जाता। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू टूट कर गिरने लगे, जिसे कोमल ने जल्दी से साफ कर दिया और अपनी प्यारी दोस्त को अपने गले से लगा लिया। मोहित बहुत गौर से उस छोटी सी लड़की को देख रहा था, जिसमें ना जाने ऐसी कौन सी कशिश थी जो बार बार उसे इस लड़की की तरफ मुतवज्जो करती थी, यह हकीकत जानते हुए भी कि वो उसके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? कमरे में जाने के बाद वो बिस्तर पर गिर गया और उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मैं तो यहां पर अपना इंतकाम लेने आया हूं। कहीं ऐसा ना हो इस लड़की की वजह से मैं अपना इंतकाम लेना भूल जाऊं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं फारूक ताया से वो सब कुछ हासिल करके रहूंगा जो उन्होंने मुझसे छीना था। मुझे सिर्फ एक बार पता चल जाए कि मेरी मां के साथ किसने गलत किया था, मैं उस इंसान को जान से मार दूंगा। गुस्से से उसका बुरा हाल था। एक बार फिर मां का चेहरा उसकी नजरों के सामने घूमने लगा था। उसकी मां ने बहुत ही तकलीफ भरी जिंदगी गुजारी थी। अपने शौहर की तरफ से उसे हर वक्त ताने सुनने को मिलते थे, मगर वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन उसने अपने बेटे के सामने अपने दिल का हाल बयान कर दिया। उस दिन उन्होंने रोते हुए मोहित के हाथ पकड़े थे और अपनी तकलीफ बयान करते हुए कहा था, तुम्हारे ताया जान ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने मुझे सारे खानदान के सामने रुस्वा कर दिया। ना सिर्फ मेरे शौहर की नज़रों के सामने गिरा दिया, बल्कि उसके साथ साथ मुझे खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। बेटा, तुम्हारी माँ कसम उठाकर कहती है कि तुम्हारी माँ बेकसूर है, वो पाक है, उसने कभी कोई गलती नहीं की। मगर उस जालिम खानदान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उन्होंने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली और मेरा ऐसा हाल कर दिया। मोहित ने अपनी माँ को सीने से लगाया और उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा, फिक्र मत करें, बहुत जल्द मैं आपका इंतकाम लूंगा। ताया जान से तो मेरे बहुत से हिसाब किताब बनते हैं। मैं बहुत जल्द वो सारे चुका दूंगा। तकरीबन 1 साल मजीद गुजरा था कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया और वो इसको इस फानी दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। वो रोज माँ की कब्र पर जाता और माँ से वादा करते हुए कहता था कि वो वक्त दूर नहीं है जब मैं उसकी बेटी के साथ भी वही सलूक करूंगा जो सलूक आपके साथ किया गया था अम्मी जान। तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही वो लोग अपने खानदान वालों से राजी हुए थे। उसके बाबा ने खुद अपने भाई से जाकर माफ़ी मांगी थी। माजी में जो कुछ भी हुआ था वो लोग मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे, सिवाय एक शख्स के जिसका नाम मोहित था। ना तो वो अपनी माँ के आंसू भूला था और ना ही वो उन पर किया हुआ जुल्मों सितम भूला था। उसे एक एक चीज़ याद थी। वो आया ही इस वजह से था ताकि इंतकाम ले सके। जुनैद साहब ने अपने बड़े भाई फारूक से माफ़ी मांगी थी और अपने बेटे मोहित को भी कहा था कि वो भी उनसे माफ़ी मांगे। वो बिजनेस जो कि एक लंबे अरसे से अलग था, वो फिर से एक साथ हो गया। दोनों भाइयों ने अपने अपने हिसाब से शेयर भी इन्वेस्ट किए थे। मोहित को बिजनेस की बहुत ज़्यादा समझ बूझ थी और वो ये काम भी दिल लगाकर करता था क्योंकि वो हद से ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। बचपन से ही उसे पैसा बनाने का बहुत शौक था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका शुमार मुल्क के सबसे अमीर तरीन लोगों में हो।
और फिर बाद में वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनना चाहता था। इसीलिए वो दिल लगाकर मेहनत करता था, हर काम बहुत सोच समझ कर करता, और अब अपने रब पर भरोसा रखता था। उसे पता था जब तक उसका रब उसका साथ देगा, कोई भी इंसान उसे मुंह के बल नहीं गिरा सकता। 29 रोजे हो चुके थे। अभी तक ईद का चांद नजर नहीं आया था, लेकिन लड़कियां इस यकीन के साथ मेहंदी लगा रही थीं कि कल लाजमी ईद होगी, जबकि लड़के उसका मजाक बना रहे थे कि ऐसा ना हो कल फिर से रोजा हो जाए और परसों तुम लोगों की मेहंदी मांद पड़ जाए। लड़कियां उनकी बातें सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाती थीं। जवाब में वो इनका भी मजाक बनाती थी कि चलो हम तो मेहंदी लगाकर तैयार शैयार हो जाएंगे, तुम लोग अपने बारे में बताओ, जिन लोगों ने कल पूरा दिन ख्वार होना है। उन लोगों की आपस में नोक झोंक जारी थी, जबकि वो खौफजदा होकर अपने कमरे में चली गई थी। मोहित थोड़ी देर के बाद फिर से आकर महफिल में बैठ गया। उसकी निगाहें मुसलसल मिराल को तलाश कर रही थीं, जो कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। बेसाख्ता उसने कोमल से पूछा, तुम्हारी दोस्त कहाँ पर है? तो वो आंखें छोटी छोटी करके उसे मशकूक नजरों से देखने लगी। आप कुछ ज्यादा ही उसकी जात में दिलचस्पी नहीं लेने लगे? मैंने देखा था कि दिन के वक्त भी आप उसके आगे पीछे घूम रहे थे, और अभी थोड़ी देर पहले जब वो चीख रही थी तो आप ही उसके पास जाने वाले पहले इंसान थे। मुझे बताएं, आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? दरअसल कोमल बहुत ओपन माइंडेड थी और किसी हद तक मुंह फट थी। कोई भी बात करने से पहले वो हिचकिचाती नहीं थी। जो कुछ उसके दिल में होता वही सब कुछ उसकी जबान पर भी। वो ये सोचे बगैर बोल देती थी कि उसके अल्फाज किसी दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये सुनकर मोहित के माथे पर बल पड़ गए। पहली बात तो यह है कि तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह के सवाल करने वाली? कोमल को यकीन नहीं था कि वो बुरा मना जाएगा, क्योंकि वो उसके गुस्से से वाकिफ नहीं थी। इससे पहले कि वो सफाई पेश करती, मोहित ने उसे कहा, आज तो तुमने मुझसे इस टोन में बात कर ली, लेकिन अगर कभी दोबारा मुझसे इस लहजे में बात करने की कोशिश की तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये कहकर वो खुद से वहां से चला गया। उसका रुख मिराल के कमरे की तरफ था। अंदर से उसे हिचकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मोहित की एक बड़ी बहन थी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, और वो आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन में रिहाइश पजीर थी। जुनैद साहब ने अपनी बेटी को भी वापस बुला लिया, क्योंकि अब वो उसकी शादी करने का इरादा रखते थे। जब उन्होंने उसका रिश्ता फुरकान से तय कर दिया, जो कि फारूक साहब का ही बेटा था, तो मोहित हत्थे से ही उखड़ गया। वो अपनी बहन का निकाह इस घर में नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर बाप की वजह से मजबूर हो गया। दूसरी तरफ बहन की मर्जी भी शामिल थी। उसे पता ही ना चल सका कि कब फुरकान और सोनिया में बात शुरू हुई, जबकि मिराल इस सब बारे में बहुत अच्छे से जानती थी और वो बहुत पुरजोश भी थी। एक दिन उसने खुद ही इस बात का एतराफ़ किया था कि सोनिया बाजी तो फुरकान भाई से बहुत पहले से बात कर रही हैं। जब वो लंदन गई थी तब फुरकान भाई उन्हें वहीं पर मिले थे। उन दोनों को पता नहीं था कि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। आपको तो पता है कि खानदानी दुश्मनी चल रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों की आपस में बातचीत नहीं होती थी। अब शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो रही थी, जबकि उसकी बातें खंजर की तरह मोहित को अपने दिल पर लगती महसूस हो रही थी। जितना वो उन लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता था, उतना खुद ही तकलीफ उठाता था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्योंकि किस्मत उसके साथ बार बार मजाक करती। क्यों हर बार वो मुंह के बल गिर जाता है? उसकी बहन की इस घर में शादी होने का एक नुकसान ये भी हुआ था कि अब वो अपनी मां का बदला नहीं ले सकता था। अगर वो इस खानदान की किसी औरत को तकलीफ पहुंचाता तो वो भी उसकी बहन को तकलीफ देते, और वो कैसे अपनी बहन को दर्द में देख सकता था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। फुरकान एक बहुत ही आज़ाद तबीयत का मालिक था, हर दूसरी लड़की पर ही फिदा हो जाता था, जबकि सोनिया उसके मुकाबले में
बहुत ही सेंसिटिव, एक ही मर्द से मोहब्बत करने वाली थी। जब थोड़ा सा वक्त गुजरा तो उसे अंदाजा होने लगा कि ये इंसान तो उसकी सोच के बिल्कुल बरक्स है। वो तो फुरकान की पर्सनैलिटी पर अपनी जान फिदा कर बैठी थी। अगर उसे अंदाजा होता कि वो इस कदर गंदी फितरत का मालिक है तो वो कभी भी उससे शादी करना पसंद नहीं करती, क्योंकि इस तरह के मर्द के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसका दिल एक औरत से नहीं भरता। उसे हर वक्त एक नई औरत चाहिए होती थी। यही वजह थी कि उसने अपनी बीवी के पास आना भी छोड़ दिया। काफ़ी अरसे तक तो वो ये बर्दाश्त करती रही। फिर जब वो उम्मीद से हुई तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने अपने ससुर साहब से कहा कि आप फुरकान को समझाएं कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए, वरना मैं अपने भाई को बता दूंगी और ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वो इस वक्त फारूक साहब से अपने शौहर की शिकायतें लगा रही थी। फुरकान, जो कि थोड़ी देर पहले ऑफिस से वापस आया था, अपनी बीवी की चलती हुई जबान देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया। एक लम्हे की देरी किए बगैर उसके पास आया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारते हुए कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बाप को धमकी देने वाली? अब दोबारा अगर तुम्हारी जबान से इस तरह की कोई बात निकली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। जितना जल्दी हो सके अपनी औकात याद कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। वो इस वक्त शर्मिंदगी के मारे सर उठा नहीं पा रही थी। फर्श पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। कभी भी किसी ने उसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। उस पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात। ना सिर्फ वो अपने बाप की लाडली बेटी थी, बल्कि उसके साथ साथ अपने भाई की लाडली बहन भी थी, जो उससे बहुत मोहब्बत करता था। गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की। वो जो कमरे से बाहर निकल रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर दोबारा से उसकी तरफ आया ताकि उसे नुकसान पहुंचा सके, मगर मीराल तेजी से आगे बढ़ गई और भाई के सीने पर हाथ रखते हुए कहने लगी, आप होश में तो हैं? ये क्या कर रहे हैं? कौन सी मर्दानगी है कि आप एक कमज़ोर औरत पर हाथ उठा रहे हैं? ऐसा मत करें, वरना आप भी मेरे दिल से उतर जाएंगे। वाकई उसे अपने भाई से बहुत घिन आ रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका भाई कभी इस तरह की हरकत करेगा। तुम छोटी हो, छोटी बनकर रहो। बड़ों के मामलात में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। वो उससे भी बदतमीजी करके वहां से चला गया। सोनिया ने एक ही जिद लगाई हुई थी कि उसने अपने घर वापस जाना है। फारूक साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे। बड़ी मुश्किल से माजी के मामलात दुरुस्त हुए थे और उन भाइयों की आपस में बातचीत शुरू हो गई थी कि एक नया मसला आ गया। रात के वक्त उन्होंने अपने बेटे को कमरे में बुलाया और उसे समझाते हुए कहा, देखो, तुम सोनिया के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लो, वरना हमारे हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। बाप की बात सुनकर वो हैरानगी से उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या मतलब है आपकी बात का? अपने बिजनेस के बारे में तो तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि हम खसारे में जा रहे थे, लेकिन अपने भाई के सामने मैंने अपना मान रखने के लिए झूठ बोला। थोड़े ही अरसे के बाद ये झूठ पकड़ा गया और भाई को पता चल गया कि हमारी कंपनी बहुत बुरी तरह से डूब रही है। उन्होंने हम पर एहसान किया है और एक बड़ा लोन हमें दिया है। अगर इस दौरान उनकी बेटी के साथ बुरा सलूक करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मदद वापस ले ले, फिर हमारे लिए अपनी कंपनी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बाप की बातें सुनकर वो गहरी सोच में डूब गया। वो ठीक ही तो कह रहे थे। अगर कंपनी उनके हाथों से निकल जाती तो वो लोग सड़क पर आ जाते। अगर कंपनी को बचाने के लिए उसे सिर्फ अच्छा सलूक ही करना था तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जब वो कमरे में आया तो सोनिया फूट फूट कर रो रही थी। वो बेजार हुआ, लेकिन खुद पर काबू पाते उसके करीब बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुमसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। सोनिया ने निगाहें उठाकर उसकी आंखों में देखा,
जहां कहीं भी नदामत मौजूद नहीं थी। उसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो जख्मी लहजे में कहने लगी, आपके अल्फाज तो आपकी आंखों का साथ नहीं दे रहे। तुम बस इस तरह की फजूल बातें करके हमेशा मेरा दिमाग खराब कर देती हो। जब मैं एक बार तुमसे माफ़ी मांग रहा हूं तो माफ़ कर दो। क्यों मेरे पीछे पड़ जाती हो? तुमसे तो बात ही करना फजूल है। ये कहकर वो फिर से उठकर चला गया, जबकि सोनिया ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। जब वो उम्मीद से हुई तो उसे यकीन था कि फुरकान का रवैया ठीक हो जाएगा, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो अभी भी वैसा का वैसा ही था, बाहर मुंह मारने वाला, दूसरी लड़कियों से बातें करने वाला और उसके सामने दूसरी औरतों की तारीफें करने वाला। प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके वजूद में तब्दीली आ रही थी, जिन्हें देखकर वो बहुत नफरत का इजहार करता और उसके वजूद से घिन खाता था। वो जो पहले ही एक बहुत बुरे फेज से गुजर रही थी, अपने शौहर का ये रवैया देखकर हर वक्त उसकी आंखों में आंसू फैले रहते। मिराल से अपनी भाभी की यह हालत बर्दाश्त नहीं होती थी। मोहित, जो कि थोड़े अरसा पहले मुल्क से बाहर गया था, जब वापस आया तो उसने अपनी बहन के लिए बैग भरकर सामान लाया। उसे यह भी पता चला था कि एक छोटा मेहमान इस दुनिया में आने वाला है। वो उसके लिए भी बहुत पुरजोश था। उसने उस छोटे से मेहमान के लिए भी ढेर सारी शॉपिंग की थी। काफ़ी अरसा वो यही सोचता रहा कि अब पुरानी दुश्मनी को दबा देना चाहिए, क्योंकि अब तो उसकी बहन भी अपने घर की हो गई है। कहीं ऐसा ना हो उसकी बहन की जिंदगी पर बुरा असर पड़े। उसने अपने आप पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया, मगर जब वो बगैर बताए उसके ससुराल गया और वहां पर फुरकान का अपनी बहन के साथ रवैया देखा तो वो गुस्से से बेकाबू हो गया। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो उसके सर पर पहुंचा और उसे गिरेबान से पकड़कर मारना शुरू कर दिया। ये देखकर मिराल बहुत खौफजदा हो गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर अपने भाई को उस जालिम इंसान से छुड़वा सकती। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। बेसाख्ता उसने सोनिया की तरफ देखा, जो खुद डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी। उसने सोचा नहीं था कि यूं उसका भाई आ जाएगा। खुदा के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हें अपने होने वाले भांजे का वास्ता। उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए वो रुका और फिर फुरकान को जोर से पीछे की तरफ धक्का दे दिया। वो भागता हुआ अपनी बहन के पास गया, जिसके होंठ से खून निकल रहा था। जेब से रुमाल निकालकर बहुत ही एहतियात से उसके होंठ साफ किए और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मैं आपको इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। आपने इतने अरसे से इस इंसान का ये चेहरा मुझसे छुपाया। अगर आप पहले मुझे बता देती तो इन सब की नौबत नहीं आती। क्या इसे नहीं पता कि आप इसके बच्चे की मां बनने वाली हैं? फिर भी इस बेगैरत इंसान को जरा शर्म नहीं आ रही। इसके अलावा भी मुझे और बहुत सी बातें सुनने को मिली हैं, मगर मैंने उन पर यकीन नहीं किया। मैं समझता था कि वो सब झूठ है, क्योंकि आप खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। अगर मुझे पता होता कि यहां पर आप जलील हो रही हैं तो मैं उसी वक्त पाकिस्तान आ जाता और आपको इस इंसान से दूर ले जाता। चलें आप मेरे साथ, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। उसने सोनिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चलने ही लगा था कि उसने अपना हाथ एक झटके से छुड़वा दिया। वो हैरानगी से अपनी बहन की तरफ देखने लगा, जो तेजी से नफी में सर हिला रही थी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। इस तरह से मेरे बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि वो माँ बाप के बगैर परवान चढ़े। क्या हो गया है आपी जान? ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला सब संभाल लेंगे। इस इंसान के साथ अब आपका गुजारा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने अब हर हद तजावुज़ कर ली है। मैं कैसे आपको इसके पास छोड़ सकता हूं? पता नहीं कितने अरसे से ये आपको मार पीट रहा है और आप भी खामोशी से इसकी बातें और इसकी मार बर्दाश्त कर रही हैं। मेरे पास अब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फुरकान से शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। इस पर मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था। अब जो कुछ भी हो रहा है
मुझे उसे बर्दाश्त करना है। नहीं बाजी, मेरे होते हुए तुम कुछ बर्दाश्त नहीं करोगी। तुम बस मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मोहित काफी देर तक उसके कमरे के दरवाजे को देखता रहा, जो कि थोड़ी देर पहले बंद हुआ था। फुरकान उसे देखकर अजीब से अंदाज में हंसने लगा। तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, और जहां तक इस औरत का सवाल है तो फिक्र मत करो, मैं अब इसका पहले से ज्यादा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर वो फिर से उसकी तरफ लपका, मगर फौरन ही वो वहां से भाग गया। वहां पर सिर्फ मिराल और मोहित बचे थे। उसने अपनी तोपों का रुख अब इस मासूम लड़की की तरफ कर दिया। वो तेजी से उसके पास गया और उसे बाजू से पकड़कर झटका देते कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मेरी बहन को जरा भी तकलीफ पहुंची तो मुझे फौरन इत्तला कर देना। तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? वो उसकी आंखों में देखकर ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था। वो खौफ से कांपने लगी। मुझे बाजी सोनिया ने मना कर दिया था, और हकीकत भी यही थी। सोनिया अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने मिराल को अपनी कसम दी थी, तो वो कैसे अपनी भाभी की कसम तोड़ सकती थी? या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा। ये कहकर वो तेजी से घर से बाहर निकल गया। अगले ही दिन उसे जो खबर मिली थी वो सुनकर उसे लगा कि सातों आसमान उसके सर पर आकर गिर गए हैं। फुरकान ने गुस्से में आकर सोनिया को सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो मर गई थी, और ये खबर भी उसे उसकी खास नौकरानी ने दी थी, जिसे एक दिन पहले ही वो अपनी बहन के पास छोड़ कर आया था ताकि वो उसका ख्याल रख सके। फुरकान वहां से फरार हो चुका था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर वो मोहित के हाथ लग गया तो वो उसे जरूर सजा दिलवाएगा। मरने से पहले उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और मुसलसल एक ही बात कर रही थी, मेरा बच्चा ठीक तो है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मगर उसके साथ साथ उसका बच्चा भी इस फानी दुनिया से परवाज कर गया। वो काफी देर तक अपनी बहन की मैयत के पास बैठा रहा और ऊंची ऊंची आवाज में रोता रहा। दूसरी तरफ उसके ताया जान ने सबके बावजूद भी बिजनेस में धोखा देने की कोशिश की थी, मगर चूंकि सारे कागजात उनके नाम थे, इसी वजह से वो पकड़े गए, और अब अपने ताया जान से भी वो बहुत नाराज था। दूसरी जानिब फारूक साहब एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। एक तरफ बेटे की जिंदगी खतरे में थी, तो दूसरी तरफ बिजनेस भी हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। भतीजे ने उनका जीना हराम किया हुआ था। हर रोज मोहित उन्हें धमकी देने के लिए आ जाता। एक दिन वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और सोच रहा था कि किस तरह से इन लोगों से इंतकाम लिया जाए, तो उसके जहन में मिराल का ख्याल आया, जिससे उसका भाई और बाप बहुत मोहब्बत करते थे और जिसकी हर ख्वाहिश वो मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देते थे। उसके लबों पर एक शातिराना मुस्कुराहट फैल गई। पहले उसने इस बारे में अपने बाबा जान से बात करनी थी। जब उसने अब्बा के सामने अपना मुतालबा रखा तो वो उसे गुस्से से घूरते हुए कहने लगे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का हक दूंगा? अब्बा जान, उसके बाप ने मेरी माँ की और फिर उसके भाई ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी माँ और मेरी बहन उन मर्दों की वजह से इस दुनिया से कूच कर गई हैं। आप अभी भी ये उम्मीद रख रहे हैं कि मैं उन लोगों को माफ कर दूंगा और उनसे किसी किस्म का इंतकाम नहीं लूंगा? अपनी माँ का तो तुम नाम भी मेरे सामने ना लो, वो तो थी ही बदकिरदार औरत। बस कर जाएं अब्बा जान, मैं मजीद अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। जब तक वो जिंदा थी तब तक भी आप उन्हें हमेशा इसी लफ्ज़ से मुखातिब करते थे। तब मैं छोटा था, मैं कुछ कर नहीं सका। अगर बोलता था तब आप मुझे मारकर खामोश करवा देते थे, लेकिन आज मैं खामोश नहीं होऊंगा। मुझे एक ऐसे राज के बारे में पता है जिसके बारे में अगर आपको पता चले तो आपका कलेजा फट जाए।
کیا مطلب؟ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ انہیں شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا۔ بہت جلد آپ کو حقیقت کے بارے میں بتا دوں گا۔ سب سے پہلے مجھے ثبوت اکٹھے کرنے دیں۔ آپ کو پتا ہے میں بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتا، اور آپ بھی اس کے بغیر مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ اس بار جو کام کروں گا اس کے بعد شاید آپ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اس گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ جنید صاحب وہیں صوفے پر گر گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شکوہ تھا اور لہجے میں شکایت تھی۔ وہ بہت ٹوٹے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ پہلے تو صرف بیٹی کی یاد نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، لیکن اب بیوی کی یاد بھی آنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنی بیگم سے پسند کی شادی کی تھی، مگر شادی کے کچھ سال گزرے تھے کہ ان کے بارے میں خاندان والے باتیں کرنے لگے کہ وہ غلط کردار کی مالک ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں لیٹے آرام کر رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ بے ساختہ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے بڑے بھائی فاروق کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھے۔ ان دنوں ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس وقت ہر کسی پر فاروق صاحب کا ہی حکم چلتا تھا، کوئی بھی ان کے حکم کے خلاف نہیں جاتا تھا، اور نہ ہی کسی میں اتنی جرت تھی کہ وہ ان کی کسی بات سے انکار کرتا۔ بھائی جان، میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے بات کروں۔ مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے، دل تو نہیں کر رہا کہ بیان کروں، لیکن مجبور ہو گیا ہوں۔ بھائی صاحب، آپ کیوں بات کرتے ہوئے اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہے آپ کھل کر کہیں۔ آپ کو پتا ہے میں آپ پر بہت یقین رکھتا ہوں۔ بھائی، بات کچھ ایسی ہے کہ تمہاری بیوی مجھ سے غلط مطالبات کر رہی ہے۔ جنید صاحب کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ روز رات کو وہ میرے پاس آ جاتی ہے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی ہے۔ میں اسے سمجھاتا ہوں کہ تم میرے بھائی کی بیوی ہو، اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو، مگر وہ سمجھتی ہی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ پر شک کرنے لگو، اس لیے سوچا کہ پہلے تمہیں اس بارے میں بتا دیتا ہوں۔ جب تم اس سے شادی کر رہے تھے تو میں اس کے بالکل خلاف تھا۔ میں نے اماں جان کو سمجھایا بھی تھا، مگر ان کا دل تو اس کے حسن پر آ گیا تھا۔ فاروق صاحب بات کر کے خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی تھی جو جنید صاحب نہیں دیکھ پائے۔ اس دن کے بعد انہیں اپنی بیگم سے شدید نفرت ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ اسے ڈانٹتے اور مارتے تھے اور اسے تکلیف پہنچاتے تھے۔ جب مزید تھوڑا سا وقت گزرا تو وہ حویلی چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا بزنس بھی الگ کر لیا، کیونکہ ان کی فاروق صاحب سے اس معاملے میں لڑائی ہو گئی تھی۔ بعد میں بچوں کی پیدائش ہوئی، مگر ان کے رویے میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ اپنے بچوں کے سامنے وہ اپنی بیگم کو مارتے تھے اور انہیں ماضی کے حوالے دے کر تکلیف پہنچاتے تھے۔ آمنہ بیگم نے اپنے بیٹے کے سامنے ایک دن اپنی تکلیف کا اظہار کیا اور رونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب موہت نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کو ویسی ہی تکلیف دے گا۔ وہ اپنے تایا جان سے بھی وہ ساری باتیں اگلوانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس نے وہ ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھی۔ اب اس نے یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے بابا جان کو سنانا تھا۔ دوسری طرف اس نے میرال سے نکاح کی بات کی تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اپنی بیٹی انہیں بہت عزیز تھی، وہ اس پر کسی قسم کی سختی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ انسان اسے صرف اسی لیے دلہن بنا کر لے جا رہا ہے کیونکہ اس سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ بیٹا، تم مجھ سے میری جان مانگ لو، لیکن میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میں آپ سے آپ کی جان ہی تو مانگ رہا ہوں، اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کی جان اسی لڑکی میں ہے۔ جب بھی میں اسے تکلیف پہنچاؤں گا تو آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ وہ اس وقت ایک فرعون معلوم ہو رہا تھا۔
फिर उसका निकाह मिराल से हो गया और वो दुल्हन बनकर इस हवेली में आ गई। चंद दिन उसने अपनी बेगम को हवेली में रखा। जब उसने अपने बाप को हकीकत के बारे में बताया तो उन्हें अपने दिल में शदीद तकलीफ उठती महसूस हुई। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो इस बात का इतना गहरा असर लेंगे। उन्हें हार्ट अटैक आया और वो इस फानी दुनिया से चले गए। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि उन्होंने अपनी बीवी को इतना अरसा तकलीफ दी और उसके साथ ज्यादती की। वो अपनी बीवी को ऐसे गुनाह की सजा देते रहे जो उसने किया ही नहीं था। वो अपने भाई की बातों में आ गए थे और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी थी जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर इसका दिल नफरत से भर गया। अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें प्यार और मोहब्बत से रखूंगा तो ये ख्याल अपने इस दिमाग से निकाल दो। मैंने तुमसे शादी इसीलिए की है ताकि मैं तुमसे इंतकाम ले सकूं। मुझसे तुम किसी तरह की अच्छाई की उम्मीद ना रखना, वरना उम्मीद टूटने पर तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी। जी, मैं जानती हूं और मुझे अपनी औकात के बारे में अच्छी तरह से मालूम है, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारी यही समझदारी मुझे अच्छी लगती है। यहां से भागने की कभी कोशिश ना करना। वो उसकी फितरत समझता था, इसीलिए धमकी देते हुए बोला, मगर उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए तकरीबन 1 ही हफ्ते बाद मिराल ने यहां से भागने की कोशिश की, मगर गार्ड ने उसे पकड़ लिया। वो इस वक्त उसके कदमों में गिरी हुई थी और रोते हुए माफ़ी मांग रही थी। मैं आपसे वादा करती हूं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी, उसने सहमे हुए लहजे में कहा। वो ना चाहते हुए भी उस पर रहम करने के लिए तैयार हो गया, मगर जब दूसरी बार उसने फिर से भागने की कोशिश की तो उसने भी उसे सजा देने का सोचा और पूरी रात कमरे में बंद रखा। वो चीखती चिल्लाती रही, मगर इस पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था और फिर एक दिन वो हवेली से फरार हो गई। मोहित का बस नहीं चल रहा था कि वो सारी दुनिया को आग लगा दे। उसने सोचा था कि वो इस लड़की के साथ इतना जुल्म करने लगेगा, लेकिन इस हरकत ने उसे मजीद गुस्सा दिला दिया। 6 महीनों के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया और उसे घसीटते हुए हवेली लेकर आया। ये मंजर सब गांव वालों ने देखा था, मगर उसे तो जैसे कोई परवाह नहीं थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा कम करना था। उस दिन उसने उसके साथ वो सलूक किया कि वो अपनी ही नज़रों में गिर गई। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे और मोहित के जुल्मों सितम में इजाफा होता चला जा रहा था। वो हद से ज्यादा खुदसर इंसान था। एक दिन मिराल रोते कहने लगी, आप मुझे किसी ऐसे गुनाह की सजा दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। तुम ठीक कह रही हो, ये तुम्हारा गुनाह नहीं है, तुम्हारे भाई का है और अपने भाई का कफारा तुम्हें अदा करना होगा। खैर, मेरे आदमी भी उसे तलाश कर रहे हैं। जैसे ही वो मिलेगा उसे भी जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दूंगा। जो कुछ उसने मेरी बहन और मेरे भांजे के साथ किया है, उसके बाद तो वो जिंदा रहने का हकदार नहीं है। मजीद 2 महीने गुजरे तो मिराल भी उम्मीद से हो गई। एक दिन वो उस पर हाथ उठाने लगा तो उसने रोते हुए कहा, आप अपने हाथों से अपनी औलाद को मार देंगे? क्या आप मेरे साथ भी वैसा सलूक करेंगे जो भाई ने आपकी बहन के साथ किया था? आप मुझे बताएं, क्या फर्क रह जाएगा अब दोनों मर्दों में? उसने भी अपने हाथों से अपनी औलाद की जान ली और अब आप भी अपने हाथों से अपनी औलाद की जान लेंगे। तो आप अपने आप को उन लोगों से बिल्कुल अलग कहते हैं, फिर आपकी हरकतें क्यों एक जैसी हैं? आपकी सोच क्यों उन जैसी है? आपकी फितरत उन जैसी है। अभी तो इंतकाम ले रहे हैं, आप भी तो एक बेगुनाह औरत को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उस दिन वो फट पड़ी थी और वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। वो दोबारा से वही सब कुछ दोहराना नहीं चाहता था और फिर अपनी औलाद का नाम सुनकर उसका दिल यकदम मोम हो गया। औलाद चीज ही ऐसी है जो बड़े बड़े सख्त दिल इंसान को नरम बनने पर मजबूर कर देती है। उसके बाद उसने मिराल पर हाथ नहीं उठाया, मगर वो उससे बात भी नहीं करता था, ना वो उसकी तरफ नजर उठाकर देखता था।
وہ اس کی ضروریات تو پوری کر رہا تھا مگر اس کو مخاطب نہیں کرتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس طرح کا انسان اس کا شوہر بنے گا۔ اس نے تو بہت اونچے اونچے خواب دیکھ رکھے تھے جو کہ زمین بوس ہو گئے۔ تقریباً 6 مہینوں کے بعد اس آدمی پر ایک ایسا راز آشکار ہوا۔ اسے لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ میرال فاروق صاحب کی سگی بیٹی نہیں تھی، بلکہ بہت پہلے وہ اسے ایک یتیم خانے سے اٹھا کر لائے تھے۔ اصل میں انہیں بیٹی کا بہت شوق تھا، لیکن اللہ نے انہیں صرف ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا اور ایک بیٹی ایڈاپٹ کر لی۔ یعنی اتنے عرصے سے وہ ایک بے گناہ لڑکی سے انتقام لے رہا تھا، ایک ایسی لڑکی سے انتقام لے رہا تھا جس کا دور دور تک فاروق صاحب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ فاروق اور ان کے بیٹے کو جان سے مار دے، مگر اسے پتا چلا کہ فاروق صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور فرقان کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ چونکہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا، اسی لیے مخالف گروہ نے اسے جان سے مار دینا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ ان کے بہت سارے راز جان چکا تھا۔ جو انتقام اس نے نہیں لیا وہ انتقام قدرت لے چکی تھی۔ اس سب کے بعد خود بخود اس کا رویہ میرال کے ساتھ اچھا ہو گیا۔ اس نے اسے بتایا نہیں تھا کہ وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اسے معلوم تھا اگر اس نے بتا دیا تو شاید چیزیں پھر سے مختلف ہو جائیں۔ محبت تو اس لڑکی سے وہ پہلے ہی کرتا تھا اور اب وہ اس کا عشق بنتی چلی جا رہی تھی۔ میرال اس کا اچھا رویہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ساری زندگی وہ اسی تکلیف میں گزار دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا۔ اس نے ایک بہت ہی پیاری بیٹی کو جنم دیا۔ اس کے ساتھ ہی موہت کو احساس ہو رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد یہ بھی کسی اور کی زندگی میں جائے گی۔ جو سلوک آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، کل کو ویسا ہی سلوک پھر اس کی بیٹی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس احساس سے اس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی اپنی بیوی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو کچھ اس عورت کے ساتھ کر رہا ہے وہ اپنی ہی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔